महिलाएं बहुत सी इमोशनल ट्रॉमा में होती, वो अपनी बात ही नहीं कह पाती, वो एक्चुअल में जान ही नहीं पाती कि वो वायलेंस फेस कर रही हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। बहुत सारे जो सेक्स वर्कर जो हमारे ट्रांसजेंडर हैं, जो रात में जो घूमते हैं, इसके बाद में फिर पुलिस वाले मिल जाते हैं, गुंडे मिल जाते हैं, पुलिस समझने को तैयार नहीं होती, और वो लोग भी जो है उनके पास कोई रोजी रोटी का साधन होता है नहीं। बाहर अगर काम करते हैं तो लोग काम करने देते नहीं। कि सोसाइटी बहुत ज़्यादा वायलेंस हमारे लिए क्रिएट करती है। एक बार को हमारी फैमिली समझ जाती है, सपोर्टिव हो जाते हैं, बट उनको बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कौन करता है? हमारी सोसाइटी करती है, आस पड़ोस के लोग करते हैं उनको। ये उल्टा सीधा बोलते हैं, देखो कैसे जा रही है, कैसे आ रही है, कुछ लेने भी जाओ वो भी गलत, हॉस्पिटल में जाओ वहाँ भी गलत, स्कूलों में जाओ वो भी गलत है। कई लोग तो शर्म के मारे चुप भी करके रह जाते हैं कि वो बोल भी नहीं पाते कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि समाज में उनको अपना स्टेटस ओपन होने का सबसे बड़ा डर होता है। ये सभी जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके साथ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिग्मा या वायलेंस होते हैं, और उसमें खास करके जो हम देखते हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, हेल्थ सेक्टर पे स्टिग्मेटाइज जो है, सोशल एक्सेप्टेंस की बात है, तो ये सब मोस्ट कॉमन है। Many women may not be in a capacity to understand the violence itself because they are in a families or single mothers or women in sex work or trans women. The definition of violence itself is changing from women to women based on their identities. One of the harsh realities of life for every woman and queer person in India is gender-based violence. Every one of us has witnessed or been a victim of gender-based violence in some form. From straight-up beating, punching, stalking, sexual abuse and harassment, to mocking, mental torture, threatening, coercing. Violence can look different in different situations. It could be inside the four walls of our homes or on the road in open daylight. But it almost always damages the body as well as the psyche of the survivor. As the whole world went on a lockdown last year, cases of domestic violence also spiked in the country. We all know during COVID times how we saw the increase in the violence. And the gender-based violence is very less understood. If you look at it among our key population, it's very largely misunderstood. They actually accept it as a part of their lifestyle. वायलेंस जो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, सिर्फ बाहर ही नहीं एज सेक्स वर्कर्स, बट घर के अंदर भी एट डिफरेंट लेवल्स उनको काफ़ी ज़्यादा वायलेंस का सामना करना पड़ता है, बी इट फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स, बी इट फ्रॉम पार्टनर्स, या फिर सोसाइटी या कम्युनिटी से इन जनरल, और बाहर बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ देयर वर्क आई थिंक उनको काफ़ी ज़्यादा वायलेंस झेलना पड़ता है। वायलेंस एक बहुत ही आम और कॉमन इश्यूज़ हैं जो ट्रांसजेंडर लोगों को फेस करना पड़ता है ग्लोबली, हर एक कंट्री में, और वो भी डिफरेंट एरिया में। डिफरेंट एरिया अगर मैं बोलूँ इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, इन टर्म्स ऑफ लीगल एड, लाइवलीहुड। In order to address gender-based violence and develop a strategy which would be long-standing and sustainable, India HIV/AIDS Alliance brought in a project into its remit, which we called the Zero Violence Project and titled it the Abhay Project. This was implemented across 3 states in India. The Abhay Project focused on creating community-based structures to respond to women in distress and women in crisis due to violence by working at the ground level with key population groups. And this therefore created an efficient structure which I believe is a great accomplishment of the project. We are capacitating women and having some individual plans. How do you address these? How do you talk? What do you talk? And also at the community level, we are empowering with the community systems and structures. So how do you go to your police station? So what do you talk? What is the law? What is it saying? So how do you get the support from a women police station? Where these police stations are? I mean, what is the structure? So educating and facilitating the resources and other things also at the larger society level.
Abhay uses a three-way approach to tackle the problem of violence. First, it supports women through capacity building. Come, let's find out how women are being empowered to identify and report violence themselves in their daily lives. So these one-day trainings focused on these three areas. First is to define what is violence, what are the different forms of violence, and where she should go or whom she can approach for seeking any support in this line. यहाँ पे मीटिंग में मैं एक दो बार आ चुकी हूँ, तो मेरे को पता चलेगा कि इस पे भी कार्रवाई हो सकती है। कई बातें ऐसी इसमें हम कार्रवाई कर सकते हैं, हम नहीं कर पाते थे, तो ये सब मैं सीख के जाऊँगी, तो मैं वहीं अपनी बहनों को बताऊँगी। मुझे ये पता लगा जैसे कि फ़ोन पे वेबसाइट है, कंप्लेंट कर सकते हैं, आपका नाम वगैरह ना आए। जैसे मेरे साथ भी वारदात हो चुकी है कि मेरा फ्रेंड है, मुझे धमकी देता है। एक्चुअली मैं घर में बोल दूंगा, बच्चों को तो पता है, हल्ला कर दूंगा, ये है ऐसे काम करती है वैसे करती है। तो मुझे पता अगर मैं अपना एड्रेस, अगर अपनी फेस, अपना नाम नंबर ना बताऊँ, मैं कंप्लेंट करा सकती हूँ। तुमने बताया मैं डरती नहीं हूँ, मैं हौसले से थाने जाती हूँ और उनकी कंप्लेंट करती हूँ। मैंने कहा बहुत बड़े ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। The second part of this three-way approach in Abhay is building crisis response teams on ground. What do these teams do? Let's find out. At time of crisis, women can go and approach this team, and this team will provide her the necessary support. So the team will consist of a legal practitioner, a medical practitioner, a women activist or someone who is very active, and the CBO leaders. कहीं न कहीं जो है भेदभाव आज भी किया जाता है। नई समस्याएं अब खत्म हो गई होती, सजा झगड़ा बढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। पहले हम 2-3 लोग थे तो, लेकिन आज यहाँ पर 10-15 संस्थाएं आई हुई हैं। पर आने के बाद में एक नेटवर्किंग बना है। तो नेटवर्किंग बनने के बाद एक ग्रुप बना है। कहा जाता है कि 11 होते हैं। जो भी समस्या हमारे लोगों के पास उसके अंदर आएगी, तो हम लोग मिलकर सभी लोग हल करेंगे। And that brings us to the third part, which is sensitization. We are sensitizing the police on the lawmakers, the medical practitioners in that area, the doctors, the defenders of the public health facilities, and the legal practitioners, so that we get necessary support from these three authorities when CBOs approach them for support. They are aware of their rights and know that the laws of the land protect them. But there still might be a gap when it comes to reporting these cases officially. Come, let's find out what these legal practitioners have to say. हम जानते हैं कि बहुत सारे लॉज हैं, लेकिन आज के समय में लोगों को लॉ के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, और लॉ की जानकारी न होने के कारण कई बार कई समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। तो अवेयरनेस जो है वो आज बहुत ही लाना जरूरी है। The lack of knowledge about the right legal channels to report the violence results in many survivors suffering in silence. उनको बेसिक चीज़ें पता हैं, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये नहीं पता। उनको ये पता है कि अगर हमारे साथ किसी भी तरीके की हिंसा हो रही है तो हम थाने में जाके कंप्लेंट करा सकते हैं, ये कानून है। लेकिन उनको फिर ये हो जाता है कि अच्छा अगर पुलिस ने कंप्लेंट नहीं ली तो हम आके घर पे बैठ गए। उसके आगे कि आप ACP या DCP के पास जा सकते हैं अगर SHO या लेने से मना करे, या उसके बाद आप 156(3) में मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। ऐसे जो आगे के स्टेप्स हैं इनके बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो ये जो ट्रेनिंग्स हुई हैं, इंटेंशन ये था कि इनको ये स्टेप्स बताए जाए। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है हमारे पास, पॉक्सो है, ऑल्सो ITPA जो इमोरल ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स एक्ट जो ट्रैफिकिंग के बारे में बात करता है। आई थिंक स्क्वायरली ऑल्सो सेक्स वर्क भी उसमें कवर होता है, स्पेशली जो लीगलिटी और इलीगलिटी का एस्पेक्ट है, तो वो आई थिंक उनके लिए बहुत जानना ज़रूरी है। जो अभी रिसेंट एक्ट आया है 2017 में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ PHIV पर्सन्स, आई थिंक बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो बेसिक स्कीम्स है, आई थिंक हेल्थ स्कीम्स हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, PCPNDT एक्ट है, जितने भी गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है फॉर विमेन, आई थिंक उनको डेफिनेटली पता होना चाहिए। These trainings also inform people about the free legal aid that is available for survivors in all states throughout India. Let's hear how it works. डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी वो आपको किस तरह से मदद रूप हो सकती है, इसके बारे में हम लोगों को अवेयर करते हैं। हमारा काम है, स्लम के अंदर जानकारी चाहिए तो स्लम के अंदर हम लोग जाते हैं, कॉलेज इंस्टीट्यूट में हमको देना है तो वहां पर हम जाते हैं। तो DLSA ऐसा भी कामगिरी करता है जिसके अंदर विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत लोगों को, पॉक्सो की विक्टिम जो भी होते हैं उनको भी DLSA के द्वारा पर कंपनसेशन दिया जाता है। मर्डर के जो भी व्यक्ति एक्सपायर कर चुके हैं उनके परिवार को भी मदद की जाती है। या एसिड अटैक के मामलों में भी
DLSA के इंटरफेयर से आज विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत लोगों को मदद पहुंचाती है। Though it is clear that there are a number of provisions in our system to address incidents of violence, but still, it is not perfect. अगर आप पॉलिसी लेवल की बात करते हो, मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी नालसा जजमेंट जो आया था 2014 में, बट अभी 6 साल बाद भी उसका कुछ खास इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। इसके बाद अभी हमारे पास ट्रांसजेंडर एक्ट है, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, उसका रूल्स भी आ गया। वहाँ पे नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात है, वहाँ पे इंक्लूसिव सर्विस की बात है, बट सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि कानून जो भी बदले, एक्ट जो भी चेंज हो, बट कॉमन पीपल का माइंडसेट वो उतना चेंज नहीं हो रहा है। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की बात है, ट्रांस बिल आया, इवन कि HIV को लेकर के अगर बिल आया, या फिर सेक्शन 377 जजमेंट आया। लीगल तौर पे तो चलो ठीक है, हमारे लिए या समाज में इस तरीके से नियम कानून आए हैं, बट उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन करेगा? समाज ही करेगा। This unbridged gap between our legal system and the outlook of society often leads to harassment of the queer community by those who are supposed to protect and serve the community. पुलिस का इंटरेक्शन हर एक व्यक्ति से हर समय होता है, आमने सामने। हमें ये मानना चाहिए कि पुलिस एक अहम भूमिका अदा करती है किसी भी क्राइम को रोकने के लिए। Which is why Project Abhay has focused on this gap and is working on sensitizing police personnel. महिला पुलिस स्टेशन में जो टीम होती है पुलिस कांस्टेबल से लेके ऑफिसर की, वो विमेन पुलिस ऑफिसर्स ही होते हैं, ताकि वो उनको जो भी कुछ आने वाली जो विक्टिम जो हुई है महिला, उनको अपनापन लगे और उनको अच्छी तरह से अपने बारे में वो बता सकें, उनके साथ मिसबिहेव कम से कम ना हो और उनको ऐसा लगे कि सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा एक माहौल बनाने के लिए, सेंसिटाइज करने के लिए साल में 2-3 बार ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलते हैं। The project has been successful in addressing several existing gaps and has worked on building bridges between different sections of society to achieve the target of zero violence. ये जो ट्रेनिंग्स रही है, मुझे एटलीस्ट ऐसा लगता है कि इससे थोड़ी बहुत सेंसिटाइजेशन, लीगल सेंसिटाइजेशन जो है वो कम्युनिटी में बढ़ेगी। उससे ये होगा कि आगे चल के अगर कोई गलत फायदा उठाने की कोशिश करे, जैसे कि अगर कोई कहता है कि जो 0 FIR हमारे यहाँ तो नहीं होता, नहीं होता है, तो वो डिफरेंस होने में और ना होने में डिफरेंस पता होना, या फिर ये पता होना कि आज अगर पुलिस किसी भी हालत में थाने में जाके कंप्लेंट ना ले, तो मैं ऊपर जाके वहाँ भी मेरा रिड्रेसल है, तो मैं इमीडिएटली वो स्टेप्स लूँ। अभी तक जितनी दिल्ली में हमने और दिल्ली के बाहर जो मीटिंग की है, वहाँ से केस आना शुरू हो गए हैं। जो हमने CRT के ग्रुप बनाए हैं, वहाँ पे लोग अपनी कंप्लेंट लेके आ रहे हैं, हमारे लॉयर्स के पास फ़ोन आने शुरू हो गए हैं, लोग हमें फ़ोन करके कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हम कहाँ जाएँ। तो ये किस प्रोग्राम के जरिए अच्छा काम हो रहा है। Violence in most cases is about asserting one's power and control over the other. It is a cycle that must be broken, that can be broken. वायलेंस को लेके मैं महिलाओं का ये कहना चाहती हूँ कि अपने साथ हो रहे वायलेंस को ना होने दें, वायलेंस को समझिए, वायलेंस के खिलाफ आवाज उठाइए। टू गेट रेस्पेक्ट यू हैव टू गिव रेस्पेक्ट एज वेल। जो होलिस्टिक अप्रोच है, ट्रांसजेंडर हो, गे हो, कोई भी हो, वुमन ऑफ एनी कलर या मैन जो भी हो, सबके साथ एक जैसा अगर आप बिहेव करोगे तभी देश आगे जाता है। किसी मजाल है कि वो हमको आके रोक सके। मेरी उड़ान बढ़ती और बढ़ती जाएगी, मेरी उड़ान बढ़ती और बढ़ती जाएगी।